ओम शांति। आज का हमारा पहला प्रेजेंटेशन सेशन है। जिन भाई बहनों ने अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर रिसर्च किया है राजयोगा के ऊपर, वो पेपर्स प्रेजेंट करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी बंसीधर भाई जी से और तनुश्री बहन से कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी स्लाइड्स अपलोड कर लें। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। हम राजयोग कैसे हमारा शरीर क्योर कर सकता है इसके बारे में आपको थोड़ा देंगे। तो ये हमारा अनुभव से भी कुछ रिफ्लेक्ट है। हम 42 years in this knowledge and I practice Rajयोग especially in the Amrit Vela, and not a single day I have missed except in 2010 when I was returning from Madhuban. I felt sick due to the cold. That time 2 to 4 days I have been admitted to the hospital. Otherwise I have been not admitted in hospital for any disease. So I will start this Rajयोग meditation, how Rajयोग can help us to cure our disease. So next, Rajयोग, this is the best on Rajयोग based on fathomless love towards the sweetest Shiv Baba. हम बाबा को जितना लव करेंगे वही है राजयोग, नथिंग। जितना प्यार आप करेंगे, तो इसमें जैसे बोला नेक्स्ट में बोला है, प्रोसेस ऑफ राजयोग मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑन द लव फिलोसफी। जैसे पतंजलि है उस पर लव फिलोसफी नहीं, कोई भी लव फिलोसफी, बाबा को प्यार, दुनिया में ऐसे कोई फिलोसफी नहीं जहाँ लव है। तो परमात्मा आकर हम बच्चों को ऐसे लव सिखाते हैं जिससे हमारा, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों कनेक्टेड है, तो उनसे हमारा शरीर का रोग जरूर क्योर होगा। थर्ड है, इफ वी एनगस्ट इन द ओशन ऑफ लव, वो भी लव है। जैसे हम प्यार के सागर में खो जाएंगे, हमारा जो रोग है, डिजीज है, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए राजयोग मेजर बाय इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, हम कितना समय डीप में जो कर सकते हैं और हमारा फ्रीक्वेंसी कितना समय हम रह सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द लॉर्ड बुद्धा सेज, टू एंजॉय गुड हेल्थ, टू ब्रिंग true happiness to one's family, to bring peace to all, one must first discipline and control one's mind. If a man can control his mind, he can find the way of enlightenment, and all wisdom and virtue will naturally come to him. So health is the main things for which we require meditation. Next, this is a American lawyer and politician says good health is the most important in the principal capital asset. So this is a principal asset, good health. The World Health Organization says the health is complete physical, mental, social, and spiritual well-being, and not merely an absence of disease of infirmity. रोग हमारा शरीर में ना, ये disease not that, but mental and spiritual we must be cured. So for physical health, good balanced food and exercise you require. For spiritual good health, we require spiritual good food, good thoughts. You know, the good thoughts is the main criteria for our meditation. So we get this from Murli, and the exercise, that is the meditation. So from outside, human is 10% well, and from inside there are 90% various diseases inside, just like iceberg floating in the sea. ये बर्फ का जहाज, बर्फ का समुद्र में आइसबर्ग जिसको कहते हैं, वो 10% दिखाई देता है, 90%. So any ship will trust with it. So this is the how we seems to be cure, we seem to be good health, but not 90%, because we know that our body for 63 hours we have done some mischief for which we are suffering from the disease. So this is a journal Psychosomatic Medicine, that is published in the Maryland, USA. 2 groups are made. One is mediator group and a waiting group. So after 8 weeks,
found increase in interactivity, a positive effect. But after 4 months, second group no change. After 4 months, significant stronger antibody immune system, antibody. So which may cure our body, it develops. So this is the second group. So results show that the magnitude of the left side of internal brain activation closely mirrored to the magnitude of the antibody response. That I have told the antibody which opposes the disease. Therefore, the more responsible individual brain was positive effect. So we always therefore tell that it is a positive effect. Impacts on the meditation, stronger is positive immune reaction. So a survey conducted, 100 people are having 200 diseases in 4 metropolitan cities. And 95 people are suffering from psychosomatic disease. And these are the survey how we are suffering from 200 disease like this. So now we'll go to the battery of the car is discharged. Our battery of the car, our soul is discharged. Soul is the driver. So this is the 7 attributes, but we must know the order, how our soul should be charged. So one is we must know the knowledge about ourselves, about God. So this is the knowledge from which we can get the purity. Without purity, we cannot get peace. Without peace, we cannot get love. And we cannot get happiness, bliss, and power. So this is the system. This is the order. This is the order. We must get the purity if you want to get to peace. If you want to get to know the love and happiness and bliss and power. So we get power last. So battery is to be charged by the generator, the connecting with the Supreme Father, God, Father Shiva. 7 virtues of souls are to be restored and body will be energized. So this is the human cells. So human cells, there are 70,000 crores of cells in our body and 10,000 crores are neuron in our head. You see, we require, for smooth running of this, we require power and oxygen sufficiently. Cells can do 1 lakh of reaction. Cells, 70,000, 80,000 crores of cells and neurons in our body, we require in 1 second, 1 lakh of reactions are being done. So they give 1100 chemical reactions. There are some good for health, some cells, second can produce 1000 good and bad chemicals. They produce 1100 bad and good chemicals. Morphine, cannabinoids, peptides, and neurides are good chemicals, while norepinephrine is a bad chemical. So, if you think bad, there are, you see, lakhs of poisons are creating in our body. So, our source, as you source, so you will get. So, if you think bad things for anyone, 1 lakh of poison will be created in 1 second. So bad thoughts are just like poisonous and good thoughts have a good effect on the body. When our cells and neurons work in the body, these produce a lot of impure materials which require lot of oxygen for cleaning. So when a machine is doing some work, there are some, it is to be cleaned. So it is to be cleaned by the oxygen. So we require also oxygen. If cells and neurons should function in good thoughts, so therefore our body should think good. Therefore, Baba says, what Baba says? Baba ने क्या बताया? बाबा ने बताया सदा अच्छा सोचो, किसके लिए बुरा मत सोचो, शत्रु के लिए भी नहीं. सो हम शत्रु के लिए भी बुरा सोचेंगे, ये भी पॉइजन हमारे शरीर में क्रिएट करेंगे. सो चाहते हैं गुड हेड, सो थिंक गुड, गिव गुड थॉट्स. जैसे आपने देखा हुआ एक शिव के मंदिर में क्या होता है, एक कहता है ना माठिया होता है, उसके एक ड्रॉप पानी निकलते हैं, एक यह है गुड थॉट्स.
So if you give us good thoughts to our body, then our thoughts will change and our the body cells, they will be also change. They will give the good reaction for our body. So then will come our body, because you know carbon dioxide is produced in the body. They must be clean. So lungs are for that. फुसफुस जिसके कहते हैं. So there you see, so from this, what is the function of these are function, the main function of this are converting a chemical in blood cells called angiotensin 1 to angiotensin 2. So what is the angiotensin? It regulates cardiac contractility, cell coupling, impulse propagation, and involved in the cardiac modeling, growth and apoptosis. So we require about 7 to 8 liters of air per minute for our lungs, and we require 11,000 liters, 380 cubic per day for our body. 11,000 liters or 380 cubic meters in a day. So we are getting about the 20% of oxygen, and we are releasing 15% of oxygen, and only 5% of volume air consumed each day. So therefore, a human being uses about 550 liters of pure oxygen. We require about 550 liters of pure oxygen in a day. So how oxygen? In oxygen, it is a oxygen required for our body for cleaning. Oxygen available in Satyug is 50% of air. In 18th century, oxygen available is 33%. Now oxygen, some days back it was available in 23%. Now it is reduced to 20%. 20% means, you see, if it is reduced to 13%, no human being can exist. We are cutting trees, which gives us oxygen. So you imagine now it is 20% oxygen available. 20% मिल रहा है. So 13% हो गए only जो reptiles, snakes, reptiles, lizards, they will remain. No human beings can exist in this world. So therefore, we require 20 full blobs. These trees are required to be produce oxygen. 20 full blobs. But अच्छा बड़ा गाछ we require, which will give us for a year oxygen. The energy required for a soul. So you see, we require about 7,000 watts. You know watts? We require. We are telling now it is available. Now, few days back we are giving 1,100 watts because we require light. So our body, our source requires 7,000 watts. But from energy, about 70% energy required from the brain, and rest 30% for our body functions. So when anyone born is bad, thinking bad, if you think bad things, so what will, from 7,000 it will come to 1,000 watts. If you think bad, so what will happen then? Energy 100 watts, 1,000 watts is equivalent to energy of a dead man. So हमारे पास बाबा जैसे कहते हैं ना, सब मुर्दा, सब मरे पड़े हैं. कहते हैं, क्यों कहते हैं? हमारे पास एनर्जी नहीं है. हमारे पास 1,000 because you require 7,000 energy watts of energy, but हमारे पास 1,000 energy है. So हम कैसे चलेंगे? इसलिए energy you require. Where you will get? From the Supreme Soul. So if you connect with the Supreme Soul, Shiv Baba, we will get 50,000. If you connect, so how much we will get? We will get 50,000. We require only 7,000 to run our body. So we require, so meditation so required so that we can get 7,000 watts of energy. Then we will come to the heart. ये तो आप तो लंग्स के बारे में सुना, सेल्स के बारे में, हार्ट आप तो जानते हैं हार्ट. सो
5 to 7 liters, about the 7% of total body weight. We require blood for we must have. हमारे पास 5-6 लीटर के ब्लड है हमारे पास. So huge energy is required. For this we require also 45 to 85 watts of energy. So you know about our when we are inhaling, that is known as a systole, and when we are exhaling, that is known as the diastole. So what happens in artery, आप तो जानते हैं artery में हम pure blood आता है और छोड़ते हैं किससे? वेन से छोड़ते हैं. सो 0.5 सेकेंड्स लगता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए आर्टरी में, एंड 0.4 सेकेंड लगता है वेन में. सो टोटल 0.9 सेकेंड्स. सो इफ 0.5 सेकेंड रिड्यूस टू 0.4 सेकेंड, some portion of the artery got plastered. So we go to the card department, where card department will tell it is to be operated. So if the plastic becomes about 20%, 80%, then what will happen? Our life will be at stake. So I will not tell, just I am going to finish because this is a large PPT. So now we will go to the endocrine system. Endocrine system, in about 7 endocrine system. We know hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, pancreas, and these are 7 and ग्लैंड डक्टलेस. सो क्या होता है, तो आप देखिए, आप जब ये प्रॉपरली इससे क्या निकलता है? हार्मोन निकलते. जो हार्मोन निकलते ये क्या होता है? हमारा बॉडी को चलाते हैं. तो वो रिसर्चर ने बताया, दुनिया के रिसर्चर्स, हमारा ब्रह्मा कुमारी तो कहते हैं अमृत वेले जो 4 से 5 तक दुनिया जी रिसर्च वाला बताया है, 4 से 5 तक आधा घंटा जो खुशी में रहेंगे, उनका बॉडी जो ग्लैंड है ना, वो ठीक जैसे सारेगामा बजते हैं ना, ऐसे बजते हैं. तो ऐसे बजते हैं तो क्या होता है? वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं. तो खुशी रहने के लिए क्या करना है? खुशी रहने के लिए हम परमात्मा को जुड़ेंगे, हमारा कनेक्शन जुड़ेंगे, तो क्या होगा? हमारा शरीर के अंदर जो 7 ये है, सो आपको क्या करेंगे? आपका शरीर को अच्छा बनाएंगे और कोई भी रोग नहीं होगा. जो अमृत वेला में जो करते हैं उनका कोई रोग होता नहीं, ये गारंटेड. तो ये वैज्ञानिक ने कहा है. तो आप भी जो करेंगे, आप देखिए, इसलिए ये बता है, ये थोड़ा लेंथी, सो आई एम नॉट टेकिंग. सो आपका जो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो डॉक्टरलेस हार्मोन निकलते हैं, इससे आप योग करेंगे. और एक आपको बताते हैं, आप जो ब्रेन के लिए योग करेंगे, पवित्रता, जिसका ब्रेन, आप पवित्रता के लिए योग करेंगे तो ब्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे. वो लिखा है ब्रेन नॉलेज, ऑर्गन से इम्यून सिस्टम प्यूरिफाई. जो आपका ऑर्गन से ये पवित्रता के लिए आप परमात्मा से लगाकर योग करेंगे, लंग्स पीस के लिए, और हार्ट लव के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हैप्पीनेस के लिए, है ना, और जो हार्मोन से वो ब्लिस के लिए. अच्छा, बोन्स बास्कुल, जिसका कोई बोन खराब होता है, वो कैसे परमात्मा से शक्ति लेंगे, उसके फोकस करेंगे. आप लिख सकते हैं इसको. तो आप लिवर के लिए जॉय आप चाहते हैं, तो लिवर को फोकस करेंगे. तो वो आप जो करेंगे ना, तो आपका जो बॉडी है ना, आप देखेंगे बहुत अच्छा रहेंगे. वो ये लिखा है, आप जब इससे आपका पवित्रता जरूरत है, इम्यून सिस्टम करेंगे, पीस के लिए आप लंग्स को करेंगे, लव के लिए हार्ट को करेंगे, हैप्पीनेस के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, हार्मोन्स को ब्लिस करेंगे. विथ दिस द योग के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, वो जो राजयोग के बारे में बताया है. लेकिन लास्ट में आप बताते हैं, सोच को बदलिए.
तो क्या हुआ, मेन थिंग्स बताया ना, हमारा शरीर के जो भी रोग है वो सोच से होता है, वो हमारा सेल्स खराब होता है। तो इसलिए सोच को बदलिए, सितारा बदल जाएंगे। नज़र को बदलिए, नज़ारा बदल जाएंगे। कॉस्ट्यूम को बदलने का जरूर नहीं, ला दिशा को बदलिए, मंजिल मिल जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स, चेंज द थॉट्स टू रीच योर डेस्टिनेशन। दैट इफ यू वांट टू गेट द गुड हेल्थ, you must do the meditation. Meditation means thinking God, connecting God with the powerful thoughts that I am your son, I am getting power from you. जैसे बाबा ने काल बताया, तो ऐसे भी आप मेडिटेशन जैसे अभी भी कर रहे हैं, जो भी मेडिटेशन की, लेकिन परमात्मा के साथ लव है, तो ये है मेडिटेशन। अच्छा, ओम शांति। अब मैं अनुरोध करूंगी तनुश्री बहन से कि वो अपना टॉपिक प्रेजेंट करें। उनका प्रेजेंटेशन टॉपिक है भगवत गीता, अ पाथवे टू पीस एंड हार्मनी। तनुश्री बहन पटना सेंटर से यहाँ पर आए हैं। वो पिछले 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और स्पार्क से पिछले लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं। एंड अभी वो रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD कर रहे हैं फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार। तनुश्री बहन प्लीज़। Om Shanti. Today my topic is Bhagavad Gita, a pathway to peace and harmony. We all know that Bhagavad Gita is a song of Lord. It includes 18 chapters and 700 verses. And the present research is aimed to explore the inner power of being. Without this power, we can't achieve success in our life. And what is this power? This is peace, शांति। और हम सब जानते हैं कि हम ना चाहते हुए भी हर दिन छोटी बड़ी समस्याओं से जूझते हैं, और वो कहीं ना कहीं लिंक करती है एंगर से, गुस्सा, इरिटेशन। तो अभी कई सारे वर्च्यूज़ हैं आत्मा के, लेकिन हम अभी आज जो पावर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, शांति, पीस के बारे में। तो भगवत गीता हमें टीच करती है कि हाउ एंड वाई वी अवॉइड एंगर एंड गेट पीस इन आवर लाइफ। इसका वर्सेस है भगवत गीता का, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इट मीन्स कि जब तक हमें एक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं होगी कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, तब तक हमें शांति नहीं आ सकती। और इसका ट्रांसलेशन था कि जिस काल में आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मती है, न मरती है, और न फिर से उत्पन्न होकर के होने वाली है, और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती है। जब तक हमें इसकी नॉलेज नहीं होगी कि हम कौन हैं, तब तक हमें पीस नहीं मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि शांति क्या है। शांति क्या है? दुखेश्वनु दिग्मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध, स्थित धी मुनि उच्चते। अर्थात जो व्यक्ति दुखों के आने पर भी उद्विग्न नहीं होता है और सुखों के आने पर भी मतलब उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जिसके वीत राग भय सब नष्ट हो गए हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। और जो बुद्धि स्थिर है तभी शांति आ सकती है। वेयर इज पीस? पीस कहाँ है? तो इन वर्ड्स ऑफ भगवत गीता, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावते शांत, अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जिसकी बुद्धि, जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियों सहित बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, संशय है, निश्चय बुद्धि नहीं है, और जिसके अंतःकरण में भावना नहीं है, मतलब भावना रहित व्यक्ति है, उसके अंतःकरण में शांति नहीं आ सकती। और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। और इसको हम अगर एलोबरेट करें कि मन, हमारी जो बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, जहाँ संशय है, सबसे पहले संशय क्या होता है? अपने प्रति।
कोई भी एक छोटी सी चीज़ हम लेकर के देखें कि जब हमारे अंदर कुछ करने की चाह होती है लेकिन उसमें संशय आ जाता है, हम कर पाएंगे या नहीं। मतलब पहले ही क्वेश्चन अपने ऊपर में उठ गया, निश्चय अपने प्रति नहीं, अर्थात अपने प्रति भावना नहीं, अपनी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। तो जब भावनाहीन व्यक्ति हो गया तो जहाँ भावना नहीं वहाँ शांति कैसे आ सकती है, और जहाँ शांति ही नहीं वहाँ सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सब जो शांति की जो रूट है वो है ही है सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आप को भावना देना, अपने प्रति निश्चय। जब अपने प्रति निश्चय होगा तब हम बाहर दूसरों के प्रति और परमात्मा के प्रति निश्चय रख पाएंगे। नेक्स्ट है कि मेंटल पीस के एनिमी कौन है। वी ऑल नो दैट कौन है एनिमी? एंगर, क्रोध। तो भगवत गीता में क्रोध को कैसे सेलिब्रेट किया है? क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोध के आ जाने पर मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और जहाँ स्मृति में भ्रम पैदा हो गया तो उसकी बुद्धि का नाश हो गया। तो क्या लिंकिंग है कि जब तक हम अपनी निश्चय बुद्धि नहीं रखेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है। और क्रोध क्या करता है? हमारी बुद्धि का नाश करता है। और आप सब जानते होंगे कि एक बार अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारा जो बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है लीवर, वो 3 दिन तक अफेक्ट करता है। अगर हम एक बार गुस्सा करते हैं तो वो 3 दिन तक इफेक्ट करता है, और हम दिन में कितनी बार करते हैं वो तो हम ही काउंट कर सकते हैं। तो सबसे मतलब गड़बड़ी सबसे ज़्यादा फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग किसकी होती है? लीवर की। तो फिजियोलॉजिकल और जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो इससे लीड करती है। तो हमें कितना ज़्यादा अवेयर अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि गुस्सा हम कर तो देते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन कितना बड़ा प्रभाव डालता है। तो कंक्लूजन यही है कि हमारा एक तो निश्चय बुद्धि जब होंगे तब पीस आएगी, और जब हमारे अंदर विवेक ज्ञान बढ़ने लगता है तो क्या होता है? इसमें कहा है सरद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानम यदा तदा विदात विवृदम सतवम इति उत। अर्थात जब प्रकाश अर्थात विवेक ज्ञान उत्पन्न होने लगता है तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ने लगता है, और सत्वगुण क्या है? शांति। तो फाइनली यही है कि जब तक हमारी अपने प्रति सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगी, भावना नहीं होगी, तब तक हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद तनुश्री बहन का। बहुत अच्छे से उन्होंने भगवत गीता के बारे में जो मूल है कि शांति ही सबका आधार है, शांति है तो क्रोध नहीं है। और इस पूरे सेशन में दोनों स्पीकर्स का बैलेंस था एक्चुअली। बंसीधर भाई जी ने राजयोगा के बारे में बताया, तो योग, और इन्होंने भगवत गीता के बारे में बताया। तो परमात्मा का सिखाया हुआ राजयोग और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान इस पूरे सेशन में हमने कवर किया। थैंक यू। ओम शांति। आँख पे आ रहा है। ओम शांति। आप सभी की संख्या को देखकर मुझे लग रहा है कि बहुत रुचि है आप सब में इसके लिए, है ना? तो जैसे रुपेश भाई ने एक बात सुनाई बाबा की कि जो व्यर्थ को अवॉइड करेंगे उन्हें परमात्मा अवार्ड मिलेगा, ऐसे ही इस संबंध में जो भी बाबा के महावाक्य हों उन्हें भी ढूंढना है। अव्यक्त मूल्यों से साकार तो सुनते रहते हैं, जो उनमें आए वो तो तत्काल नोट करेंगे, लेकिन ऐसा एक अपना नियम बना दें कि रोज 1-2 अव्यक्त मुरली से गुजर गए जरा, और उसमें बाबा इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं।
ताकि हमें इसकी वैल्यू का भी बहुत अच्छी तरह आभास हो। और मैंने एक बात और आज रात को कल लिखाई थी, कौन कौन सी चीज़ें हमारे मन को ज़्यादा खींचती हैं, उसकी भी एक लिस्ट तैयार करें। मेरे मन को खींचती यही नहीं, जनरल भी किसी के मन को कुछ खींचेगा, किसी के मन को कुछ खींचता है। एक व्यक्ति को हम देखें तो उसको हर चीज़ के पीछे, जिस चीज़ के पीछे मान दिखाई दे वहाँ वो जाता है। तो ये एक सूक्ष्म बात होती है, ऐसी बातें भी। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हम समझते हैं इसे हम इंटरनेशनल बना देंगे। भाई सब पढ़े लिखे बहुत बैठे हैं, सामने भी आप में बैठे हैं। एक ऐसी एक सुंदर गाइडलाइन मिल जाए ब्राह्मण परिवार को कि उन्हें ये पता लगे कि व्यर्थ से मुक्त कैसे होना है। क्योंकि मेरे पास जब लोग आते हैं, युवकों की समस्या कि संकल्प इतने ज़्यादा चल रहे हैं, स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के एमटेक कर रहे हैं, बीटेक फाइनल ईयर में एमबीए कर रहे हैं, इतने ज़्यादा संकल्प चल रहे हैं कि हमें ना तो ये पता ये क्यों चल रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं है, और करें क्या, इनको रोकें कैसे। क्योंकि ज्ञान वालों को भी अधिकतर को ये क्लियर नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है कि इनको रोका कैसा जाए। क्योंकि आने वाले समय में ये समस्या बहुत बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है। संकल्पों की स्पीड, जो कल बाबा ने कहा ना, मुरली थी ना, संकल्पों की स्पीड को धीमा करो। मैंने आपको इशारे में कहा था 8-10 पर आ जाए प्रति मिनट, 8-10 थॉट्स पर मिनट। तो काफ़ी एक अच्छी मनोस्थिति रहती है, बहुत अच्छी मनोस्थिति। तो इसको हमें बहुत नेचुरल बनाना है। और जैसे रुपेश भाई बात कर रहे थे तो मुझे याद आया, जब ये स्पार्क शुरू हुआ ज्ञान सरोवर में, तो मैं साथ ही था, दादी, रमेश भाई, 5-7 लोग। ज्ञान सरोवर बना ही था तो घूम रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि मेरी ड्यूटी वहीं थी तब, मतलब बनने से पहले से ही थी। तो रमेश भाई ने ये विचार बताया कि जो हॉल आप बना रहे हैं, इसमें एक ऐसा कार्यक्रम शुरू हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसर्च सेंटर तो होता ही है। तो पहला जो मीटिंग हुई थी और हम लोगों को टॉपिक दिया था पावर ऑफ थॉट। तो मुझे बात याद आ रही थी जो कल की भी ये 10-12 पॉइंट्स बाबा ने कही, मुरलियों का सार है ये, मैंने भी ले ली हैं आज, क्योंकि ये और मुरलियों में नहीं है। तो वो भाई मुझे मिल गया अभी रास्ते में, उसने बेचारे ने तुरंत जा रहा महसाना खोल के मुझे ला के दिया कि ये हैं। तो फिर से इस चीज़ को हम प्लस करते हैं, क्योंकि व्यर्थ को छोड़ेंगे तो खाली थोड़ा ही होंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर से संकल्पों की शक्ति का। और जो ये पॉइंट्स हैं, 12 हैं 15 हैं, आपको मिली, मैं ले आया मुरली, 15 हैं। तो एक मास का एक तो बहुत अच्छा रखा ही जा सकता है, जिसके हम एक्सपेरिमेंट करें। जैसे रुपेश भाई कह रहे थे कि भाई यान ऊपर भेजते हैं, नीचे से कंट्रोल करते हैं, फोटोग्राफी आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ऐसा चमत्कार कर रहा है तो उससे तो कहीं ज़्यादा सूक्ष्म शक्ति संकल्प की है। इसके वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं। मैं जब, मुझे इन चीज़ों का बहुत ज्ञान नहीं था, तब भी मैं सोचा करता था कि हमारे मन का एक संकल्प के जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, एक वाइब्रेशंस में जैसे हम जा रहे हैं, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है एक वाइब्रेशंस से। मैंने, बात तो फिजिक्स की छोटी सी है, थोड़े जो फिजिक्स 10वीं तक के पढ़े होंगे वो भी समझ सकते हैं। मैं हैदराबाद शांति सरोवर में था, तो मैं एक ऐसी जगह बैठा था, तो सामने दरवाज़ा था, उसमें कांच लगा था। उस कांच से रिफ्लेक्ट होके किसी का फोटो बन रहा था। मैं देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर निकला,
दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये फोटो किसका हो सकता है? फिर वहाँ कोई आ गया, मैंने उससे पूछा ये कौन है भाई, किसका फोटो आ रहा है? उसने बताया वो व्यक्ति दूर है। लाइट के माध्यम से भी एक व्यक्ति का लाइट रिफ्लेक्ट हो के कहाँ फोटो बन रहा है कि मुझे दिखने पे भी वो नहीं दिख रहा है। तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ। ऐसे ही अगर हमारे वाइब्रेशंस बहुत ही प्योर हो जाएं, डिवाइन हो जाएं, तो हमारा स्वरूप भी तो जहाँ तहाँ दिखेगा ना। हमारा फरिश्ता स्वरूप ही हमारा देव स्वरूप। तो इन सब की हमें खूब अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और जैसा मैंने कल कहा था, हर एक भाई बहन अपने लिए अपने को डेडिकेट करे किसी चीज़ के लिए। ये मुझे करना है, डेडिकेट समझते हैं ना, बिल्कुल कुर्बान कर दें। बाबा कहा करते थे 20 नाखूनों का जोड़ लगा दो। ऐसे नहीं बस आए और कुछ सीख लिया है, ये कर लिया फिर बिजी हो गए, ये नहीं। अब समय की भी यही डिमांड है। मैं तो बहुत खोल खोल कर बता रहा हूँ सबको कि समय, मुझे तो लगता है 2018 हार्डली बीत पाएगा। और अगले इलेक्शन के बाद 19 में है ना, कुछ और स्वरूप हमारे देश का भी और इस संसार का भी होगा। लेकिन हम हाहाकार को न देख के जय जयकार में हमारा रोल है। हाहाकार करना कराना वो दूसरों का काम है, भले ही हमारे योग के वाइब्रेशंस उसमें काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पॉइंट्स भी निकालेंगे इस संबंध में जो बाबा ने कहा है, संकल्प के बारे में जो कुछ कहा है वो उस सब का एक सुंदर कलेक्शन हो जाए। हो सकता है इसमें भी हो जो बाहर लिटरेचर बिक रहा है। रुपेश भाई देख लेना संकल्प की बातें, क्योंकि उन दिनों हम लोगों ने खूब कराई थी ये, मुरलियों से बहुत सारी पॉइंट्स निकलवाई थी। अगर वो हो तो बहुत मदद मिल जाएगी। तो सभी तैयार हैं कुछ करने के लिए? क्योंकि रिसर्च तो रिसर्च है। ये बात जो आज बाबा की हमने सुनी, आप सब ने सुनी, मैंने बहुत पहले सुनी थी, आपको वो पूरा सीन ही सुना देता हूँ। दीदी मनमोहिनी बाबा से मुरली के बाद मिला करती थी। दीदी ने छुट्टी ली हुई थी कि जब बाबा लास्ट में जाएंगे तब तक वो नहीं जगेगी, क्योंकि दीदी को हाई बीपी था। तो फिर अगर वो देर तक जगती है तो नींद नहीं आएगी ना, फिर मुश्किल होती है। तो बाबा से बस मुरली के बाद पहली मीटिंग दीदी मनमोहिनी की होती थी और दीदी फिर बाबा से टोली लेके और चली जाती थी। पहले ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था कि बाबा को भोग खिलाना या ये सब कुछ नहीं था। ये तो बहुत देर में यहाँ हुआ है। बाबा की मुरली चली, बाबा सबसे मिले और बस बाबा कहेंगे बस सब चले और गए दृष्टि देकर, कोई आगे भी नहीं आते थे। तो मुझे लगता है ये लास्ट मीटिंग थी दीदी की, जिसमें बाबा ने कहा था एक दिन आएगा यज्ञ का सारा कारोबार संकल्प शक्ति से चलाओगे। तब से मुझे ये बात याद है और तब से ही मैंने इसके छोटे छोटे प्रयोग प्रारंभ कर दिए थे। हम तो किचन में थे, छोटे छोटे प्रयोग करते थे। मान लो मैं भूल गया हूँ कि दाल कितनी भिगोनी है तो मैं उस व्यक्ति को आत्मा देखकर और संकल्प भेजता था कि इतना भिगो देना, भिगोनी तो उसको है ही, और वो उतनी भिगो देता था। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हुए। फिर ये कि आह्वान करो, तो मैंने पता किसका आह्वान किया था? शंकराचार्यों का। तब तो वो नहीं आए, पर 5-7 साल के बाद आए और अच्छे अच्छे शंकराचार्य हमारे पास आए। एक तो अभी तक भी मुरली सुनते हैं, आपको पता हो, बनारस के जो हैं, यंग थे उन दिनों, वो 32 ईयर्स ओल्ड ओनली, जब हमारी रथ यात्राएं निकली थी, याद हो आपको? उसकी समाप्ति पर उनको यहाँ बुलाया था शांतिवन में, और यहाँ से वो सीधे कार से जो गए तो मथुरा ठहरे थे जाके अपने सेंटर में। लोग भागे भागे उनके पास आए थे, सनातन धर्म वाले, को सबको पता था वो आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों ठहरे हुए, हमारे यहाँ चलो, फलाना ये है वो है। कहा ब्रह्मा कुमारियों जैसा भोजन अगर खिलाओ तो चलता हूँ। उसको पता था यहाँ का भोजन कैसा है।
वो वहीं सोया, वहीं खाया, लोग वहीं उससे मिलने आए। और बनारस में, क्योंकि वो तो रोज़ सेंटर में नहीं आता, लेकिन मुझे पता था कि एक भाई रोज़ मुरली सुनाने उनको जाता था। तो देखो कितनी बड़ी बात है। कहते थे ये आधा ब्रह्मा कुमार है ही पक्का, पवित्र तो है ही, क्योंकि शंकराचार्य माना बाल ब्रह्मचारी, उसके कई कंडीशन होती हैं। वो लौकिक ब्राह्मण होना चाहिए और चारों वेदों का प्रकांड विद्वान होना चाहिए। तो वो उसमें सारी क्वालिटी थी। तो आह्वान भी इस तरह किया जा सकता है, अपने को कहीं प्रदर्शित भी किया जा सकता है। आप यहाँ हैं और आपके घर में कुछ समस्या है, फरिश्ते बनकर वहाँ गए और उनसे बात कर ली। लेकिन इसके लिए हमारी स्थिति बहुत सुंदर, लंबे समय से व्यर्थ से मुक्त, ताकि व्यर्थ का कोई भी अवरोध न हो। क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं अपने अनुभवों से, मैंने देखा कि जिन लोगों को हम प्रयोग कराते हैं, मान लो किसी को कोई बीमारी है और हमने उसे कहा कि तुम अभ्यास करो रोज 108 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ये बीमारी मेरी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब दो तरह के परिणाम सामने आए। कुछ लोग ऐसे, बस मैंने कह दिया ना हो जाएगी, नो निगेटिव थॉट, तो देखते हैं बीमारी ठीक हो गई। कुछ लोग ऐसे, कह तो दिया पर ऐसे कभी ठीक होती है क्या, चलो करके देख लेते हैं, हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई नुकसान तो है ही नहीं, थोड़ा वो भी सोच रहे, थोड़ा वो भी, तो होती नहीं। इसलिए इसमें शर्त यही होती है संकल्पों के प्रयोग में कि हम एब्सोल्युटली पॉजिटिव हों। एक भी अगर निगेटिव संकल्प चलता है तो उसका इफेक्ट रिजल्ट पर अवश्य आ जाएगा। तो बहुत अच्छा एक टॉपिक ले लिया गया है। 4-5 दिन पहले से, एक हफ्ता पहले से मेरे से बात कर रहे थे क्या टॉपिक ले, तो उन दिनों मुरली आई थी, मैंने कहा भाई यही ले लो। बाबा ने कहा था ना पीछे अव्यक्त मुरली में, मन को शांत करो। बोलो आगे किसको याद है? मन को डांस कराओ, पावरफुल बनाओ। अब ये तीन शब्द हैं केवल एक वाक्य में, लेकिन तीनों शब्दों में सारा ही खेल समा गया पुरुषार्थ का। मन को शांत करना संपूर्ण ज्ञानी की पहचान, जिसने ज्ञान को अप्लाई किया हो जीवन में। पावरफुल बनाना माना व्यर्थ पूरी तरह समाप्त और मन की स्पीड बहुत स्लो हो गई। और डांस कराना माना मन में ऐसे संकल्प भी क्रिएट करते हैं जो खुशी और आनंद की स्थिति में रखें। इसको भी आप अपना थीम में ले लें। इसमें हमने यही सोचा था ऊपर एक ऐसा हेडिंग दे दें कि उसके नीचे ये सब आ जाएं, सब टॉपिक्स। तो मन को शांत करना, मन को पावरफुल बनाना, मन को डांस कराना, सब कुछ होते हुए जो आजकल है। सब जानते हैं परिस्थितियां भयानक हो रही हैं, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, पेपर भी आ रहे हैं, निगेटिविटी की तो सुनामी चल रही है संसार में, उसका भी इफेक्ट आता है। उसमें ही चित्त को शांत करना, पावरफुल बनाना, ये सब बहुत जरूरी। तो बहुत अच्छा सभी करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार की ये मीटिंग यादगार मीटिंग हो जाएगी। क्योंकि रुपेश भाई जब हर हफ्ते मेरे से चार्ट तैयार कराते थे, मैं इनसे पूछता था कोई लिख भी रहा है या नहीं। हाँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है वो सामने आएंगे, क्योंकि मैंने साकार मुरली में सुना, साकार में ही सुना था, बाबा की पहली आज्ञा है चार्ट लिखो। बाबा रात्रि क्लास थी, रात्रि क्लास बड़ी होमली होती थी, बिल्कुल घरेलू जैसे बच्चे बैठे हैं, बाबा कुछ कुछ सुना रहा है। तो मैंने शुरू किया। मैं देखता था कि सारे यज्ञ में केवल मैं ही चार्ट लिखता हूँ। फिर मैं अपने साथी बनाता था, 2-4 साथ मेरे चल के चार्ट लिखते थे। तो ऐसी चीज़ें बल देती हैं बहुत। अब के भी हम 15-15 दिन में भेजेंगे इस बार, ताकि बहुत अच्छे उसकी सब कर लें प्रैक्टिस।
तो आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और मैं तो ये सोचता हूँ कि सभी अपने अपने सेंटर्स में बहनों को सहयोग में लेकर ऐसा एक ग्रुप बना दें सेंटर में कि सभी उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि टॉपिक ऐसा है हर एक के लिए, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, बड़े हो या छोटे हो, मैं हूँ या आप हो, 50 साल के हों 80 साल के हों, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपनी साथी बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से इससे सेवाओं में भी बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है तो सेवाएं स्वतः ही बढ़ जाती हैं। मुझे एक संकल्प याद आ रहा है बाबा का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और आप इसी तरह के महावाक्य ढूंढेंगे मुरलियों से जो हमारे ज्ञान में भी बहुत वृद्धि करते हैं और पुरुषार्थ में हमें लगेगा कि यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो बाबा का ये महावाक्य था, संपूर्ण प्योरिटी का अर्थ केवल ये नहीं कि आप व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो गए, लेकिन साधारण संकल्पों से भी परे महान स्वमान के संकल्पों में रहना, ये संपूर्ण प्योरिटी है। तो मेरे लिए बहुत सुंदर बात थी, क्योंकि हम व्यर्थ से मुक्त हो गए, हमारी प्योरिटी बहुत अच्छी हो गई, हमें कोई इम्प्योर थॉट नहीं चलता। ब्यूटीफुल थिंग। इससे हमारी प्योरिटी का प्रकाश बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन प्योरिटी का बल जो एक और बड़ी चीज़ है, वो तब होगा जब हम साधारण संकल्पों से भी ऊपर उठकर स्वमान के महान संकल्पों में रहेंगे। हमें अपनी प्योरिटी को न केवल प्रकाश बनाना है, लेकिन इसको बल भी बना देना है, ताकि ये सब धर्मों के लिए बल भी बन जाए। तो बस मेरी तो यही सबसे शुभकामना है कि आप सभी जब अगले साल आओगे सभी या नहीं? संख्या बढ़ी देख के तो हमें लगा कि पिछले बार वाले सभी आ गए हैं। जब आप अगली बार आओ तो नहीं, डबल तो हो ही जाए, व्यर्थ से मुक्त। ठीक है, आप व्यर्थ से मुक्त होंगे तो डबल तो हो ही जाएंगे। एक और महावाक्य याद आ गया मुझे, आप नोट करेंगे ऐसे महावाक्य मुरलियों से तो एक भंडार हो जाएगा आपके पास। कभी मधुबन वालों से मिलते हुए बाबा ने कहा, बहुत पहली बात है, ये मधुबन एक दिन जादू की नगरी बन जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब यहाँ किसी के पास भी व्यर्थ नहीं रहेगा। तब मेरी समझ में आया था, घरों में भी अगर व्यर्थ न हो तो हमारे घर के वाइब्रेशंस भी, मतलब घर भी लाइट हाउस बन जाएगा। तो सेंटरों को भी इस तरह लाइट हाउस बनाना है और अपने घर को भी। चलो रूपेश भाई, ओम शांति। शुक्रिया भ्राता जी। ये सामने जो चमचमाती हुई ट्रॉफियाँ दिखाई दे रही हैं, इसे देख के कैसा लग रहा है आप लोगों को? किस किस को ये ट्रॉफी चाहिए, ज़रा हाथ उठाएं। और सभी को चाहिए। तो भ्राता जी ने इशारा दे दिया है, सभी को ये ट्रॉफी मिले ऐसी कामना है। बाबा का घर, बाबा का दिल, भ्राता जी का दिल, स्पार्क का दिल बहुत बड़ा है। इसीलिए बाबा ने भी एक बार कहा था, हाँ तालियां ज़रूर बजा सकते बाबा ने भी कहा था कि तुम क्यों सोचते हो कि 108 की माला तो शायद फिक्स हो गई होगी, तुम अच्छा पुरुषार्थ करो, बाबा एक और लड़ी लगा देंगे, लड़ियाँ लगाते जाओ तो वैसे ही हम सब अच्छा पुरुषार्थ करें, अच्छा प्रयोग करें। तो ट्रॉफी तो जस्ट मोटिवेशन के लिए है, निमित्त है, लेकिन फिर भी खुशी होती है कि हमारे बड़े बाबा के घर से हमें सम्मानित करते हैं। और जिन्होंने सचमुच पूरे वर्ष अच्छी तरह से अपना चार्ट लिखा, प्रयोग किया, इतने अच्छे अच्छे अनुभव आए हैं। रात के सेशन में मैं शेयर करूंगा कि लास्ट ईयर जो भी रिजल्ट रहा है, आप सब तो रहेंगे ही। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा चमत्कार सा करा रहे हैं। जो चीज़ें किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो पाती, इवन मेडिकल साइंस भी जहाँ हार जाती है, वहाँ पे बाबा के बच्चे जो बहुत ही भोले भाले से हैं, सामान्य सा प्रयोग करते हैं और जीत प्राप्त करते हैं।
तो बाबा हमें यही चाहते हैं कि ये जो शक्ति हमारे पास है, योगी भी हमें बनना है तो प्रयोगी भी बनना है, ये बात बाबा ने कही थी। तो 2 बातें थी, आपके ध्यान में है ही। हमने योगी ऑफ द मंथ, योगी ऑफ द ईयर के लिए बात की थी, और प्रयोगी ऑफ द मंथ, प्रयोगी ऑफ द ईयर की भी बात की थी। और चार्ट में ये दोनों ही चीज़ें जाया करती थीं कि आप योग का चार्ट भी अपना भरें और उसे बढ़ाते चलें, और साथ ही थीम भी रखे गए थे जिसके आधार पे आप सबको प्रयोग करने थे, और आप सबने दिल से जान से किया है। और जो पिछले साल नहीं कर पाए उनसे अनुरोध है, इस साल क्या करेंगे? इस साल क्या करेंगे? सभी बहुत उमंग उत्साह से फिर से भरेंगे, ताकि ये इन ट्रॉफियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए। जितने हॉल में भाई बहनें हैं उतनी ही ट्रॉफी हमें बनवानी पड़े, और हमें खुशी होगी। कहते जी सबके लिए बिल्कुल ऐसा ही होगा, होना क्या ताली चाहिए। जरूर बजाएं। एक अनुभव सुनाए बिना मेरे से रहा नहीं जा रहा, 1 मिनट पे। जी भाई जी। आपने कहा ना बोली गाँव की माताएं, हम अभी आंध्र में गए थे, अभी 15 दिन पहले थे। विशाखापट्टनम से थोड़ा दूर एक जगह भट्टी थी, एक माता आई, मेरा ये अनुभव, मैंने कहा लिख के दे दो। तो कल मैंने पढ़ा, कहा वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, डैम में भी पानी नहीं रहा था, तो डैम वालों ने कह दिया भाई हम पानी नहीं देंगे किसानों को, वो अनाउंस कर दिया है, और किसानों ने बीज डाल दिए थे। अब क्या करें, फसल भी नहीं होगी, बीज भी बेकार गए, किसान बड़े निराश। ये किसान घर से एक माता जो गीता पाठशाला चलाती है, उन्हें कहा नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं, जितने भी भाई बहनें आओ सब हम मिलकर योग करते हैं और बारिश का आह्वान करेंगे। और एक विजन बनवा दिया, 25-30 भाई बहनें थे। आप हैरान होंगे, उन्होंने 21 दिन योग किया, और योग पूरा भी नहीं हुआ था, 10 दिन ही पूरे हुए थे, विजन बना रहे थे, बारिश हो रही है। और कहा 13 दिन तक इतनी अच्छी बारिश हुई, डैम भी भर गया, किसान खुश हो गए। अब डैम भर गया तो उधर के इंजीनियरों से फिर से अनाउंस हुआ कि नहीं अब पानी दिया जाएगा। अब पानी दे के क्या करेंगे, अब तो बारिश हो गई थी। और इस बात का सारे एरियाज में पता चल गया। बड़ी अच्छी बात यह है कि पता चला कि इन्होंने ऐसा मेडिटेशन किया है, तो है ना बहुत अच्छी बात। माताएं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं। सचमुच ऐसे ही सुंदर अनुभव और ऐसे ही जब चमत्कार बाबा के बच्चे करेंगे तो सारा संसार बाबा के बच्चों के आगे झुकेगा भी। और ये जो आवाज़ है कि यही है यही है यही है, वो हम करने के निमित्त बनेंगे, और ये कार्य सचमुच होना ही है। अब मैं अनाउंस करूँगा योगी ऑफ द ईयर जो रहे हैं, लेकिन मैं शुरुआत नीचे से करना चाहता हूँ ताकि सस्पेंस बना रहे कि हम तो योगी ऑफ द ईयर को देखना चाहते हैं। चलिए भ्राता जी की का आदेश है, भ्राता जी योगी ऑफ द ईयर को देखना चाहते हैं। तो योगी ऑफ द ईयर 2016 रही हैं चेन्नई से प्रमीला जी। प्रमीला बहन तालियां जरूर बजाएं। प्रमीला जी सामने आए, आप सामने आए, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करेंगे चेन्नई से प्रमीला जी का, जिन्होंने लगातार अपना चार्ट भरा है और साथ ही इनका योग भी लगातार बढ़ता रहा है। और निश्चित रूप से इन्होंने जो अनुभव किए हैं उस अनुभव को हम लोग रात के सत्र में भी 2 मिनट के लिए ज़रूर सुनेंगे। एक शब्द यदि प्रमीला बहन बोलना चाहें तो ज़रूर वो भी हम। प्रमीला जी आइए, आप तालियों में कंजूसी ना करें, जिन्होंने पूरे वर्ष परिश्रम किया है उनके लिए हम तालियां ज़रूर बजाएं। कहते जी सबसे अच्छी बात है ना, ये शुरुआत इससे ही होगी। कोई फोटो खींचने वाले हैं तो प्लीज़ 1-2 अपने मोबाइल से ही ले लीजिए। वैसे वीडियो में तो आ रहा है ना। जोरदार तालियों से प्रमीला जी का फिर से अभिनंदन करेंगे। प्रमीला जी हमारी योगी ऑफ द ईयर हैं 2016, जिनका परिश्रम रहा। उम्र आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इस एज में भी योग के लिए इतना रस, अमृत वेले से। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रयोगी ऑफ द ईयर हैं हमारे हिमाचल प्रदेश से पीके चेतन भाई। चेतन जी आपका अभिनंदन है। चेतन जी खड़े होंगे।
चेतन जी पधारे हुए हैं हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, वो नहीं पहुंच पाए। अच्छा आप, अच्छा जी, सॉरी कंफ्यूजन मुझे भी हो गया भाई। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हिमाचल प्रदेश से हमारी बहन हैं और आप प्रयोगी ऑफ द ईयर रही हैं। आपने बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं और प्रयोगों का रिजल्ट भी बहुत सुंदर और प्यारा रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। यूं ही आप अच्छे अच्छे प्रयोग करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं योगी ऑफ द ईयर के और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग अपने चार्ट तो फिलअप किए, लेकिन फिर भी उनमें कुछ मार्क्स मिस रहा, इस कारण वो रहे हैं हमारी लिस्ट में। मैं अब अनुरोध करूंगा, नाम लेता जाऊंगा, आप आते जाएंगे। कर्मयोगी ऑफ द ईयर में से नरेश भाई पलवल दिल्ली से, तालियां आप बजाते रहेंगे। हरीश चंद भाई पलवल से दिल्ली से हैं। सुरेश जी वो भी पलवल से हैं दिल्ली से, आप आएंगे। नरेश जी, सुरेश जी, हरीश भाई, और साथ ही विजय कुमार भाई हाजीपुर से। अनंत वर्मा भाई बिहार, बिहार हाजीपुर। अनंत वर्मा जी हाजीपुर बिहार, आप तालियां बजाते रहें जरूर। अंजना शाह अहमदाबाद, यामिनी बहन अहमदाबाद, और चेतन जी पुणे इसमें भी शामिल है हमारे साथ। दयावती बहन दिल्ली से, माधुरी श्रीवास्तव मुंबई से, और रुक्मणी जी लखनऊ से। तो आप इधर से भाइयों की तरफ से आते जाएंगे और भ्राता जी से ये अपना इनाम लेंगे। नरेश जी दिल्ली से। सुरेश कुमार जी पलवल से। विजय कुमार जी, अच्छा इस साइड से आइए। विजय कुमार जी हाजीपुर से। सुरेश जी पलवल दिल्ली से। सुरेश कुमार जी भ्राता जी से अपनी ट्रॉफी ले रहे हैं दिल्ली से, आप तालियां बजाएं इनके लिए जोरदार। अंजना जी अहमदाबाद से, अंजना जी अहमदाबाद, यामिनी बहन अहमदाबाद, यामिनी जी अहमदाबाद से। माधुरी श्रीवास्तव जी कल्याण मुंबई। अनंत वर्मा जी बिहार से, अनंत जी हैं बिहार से, ये भी हमारे योगी ऑफ द ईयर में शामिल रहे हैं। हरीश जी पलवल, हरीश जी का ही पूरा ये ग्रुप था जो पलवल वालों का था। हरीश जी के लिए जोरदार एक बार ताली बजाएं। पलवल में लोकल चैप्टर चलता है और इनकी मेहनत से ही पलवल वालों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज लिया। दया माता जी नहीं आई हैं, उनके सुपुत्र आए हैं, उनके लिए ताली बजाएं। दया जी को हमारी याद दीजिएगा। रुक्मणी जी लखनऊ से, रुक्मणी जी लखनऊ। बेंगलोर से लता बहन, बेंगलोर की लता बहन हो तो वो भी आए। और उसके पश्चात प्रयोगी ऑफ द ईयर में 2 नाम हैं, सुनीता जी इंदौर से और पुनः रुक्मणी जी लखनऊ से। सुनीता जी आई हैं इंदौर से। सुनीता गाडले, हाँ आप, अच्छा वो आए नहीं हैं तो आप लेंगे या उनको भेजेंगे? उनको बोल जी जी आइए आइए प्लीज आइए रुक्मणी।
रुक्मणी जी ने प्रयोगी ऑफ द ईयर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और प्रयोग भी बहुत अच्छे किए, डबल प्राइज ले रही हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत तालियां। लता जी बेंगलोर, इन्हें करनी होगी। सुनीता जी का इनाम लेने के लिए वहाँ से उनके सेंटर से ही बहन पधारी हुई हैं। सुनीता जी भले यहाँ नहीं हैं, उनके लिए करतल ध्वनि एक बार को।